Today we will know about simple harmonic motion, energy conservation in simple harmonic motion. The topic issued by the PMC in the chapter oscillation. It carries 4 marks and 4 MCQs are from this chapter. First of all, you should know about simple harmonic motion. Simple harmonic motion is when acceleration is directly proportional to displacement from its mean position, and it's always directed toward mean position. So what is K depend upon nature of medium and elasticity of medium. So so you should know about K. What is unit of K? K unit is Newton per meter, as F over X, force Newton, and displacement meter. So Newton per meter is its unit. So you should know about energy conservation in SHR means that energy is conserved, means total energy at every point is same, either it is mean position or extreme position. So potential energy instantaneous means potential energy at mean position is equal to 0, and when it is displaced toward extreme position, then displacement is x is equal to x naught. When you are at mean position, then displacement body ने कोई displacement नहीं cover की हुई, but when you are in extreme position तो body ने displacement x naught complete की हुई है. Similarly, ये भी extreme position है, ये भी extreme position है. This is mean position when the mass is at mean position. Suppose this is mass, and when it is extreme position, this displacement is x naught, and when it is mean position, this displacement minus x naught. It is positive x naught, it is negative x naught, because both are opposite extreme positions, and mean position x is equal to 0. So as potential energy is equal to 1 over 2 kx square, it is not x naught because it is about mean position. So x naught at mean position is equal to 0. So when will you put here 0, the whole equation will become 0. So potential energy is equal to 0. However, kinetic energy instantaneous is equal to 1 over 2 kx naught ka square minus x square. So x is equal to 0 at mean position, but x naught is not equal to 0. So kinetic energy is maximum at mean position. Let me tell you, kinetic energy is equal to 1 over 2 k x naught ka square minus x ka square. At mean position, x is equal to 0, but x naught is not equal to 0. So kinetic energy is equal to 1 over 2 k x naught ka square minus 0 ka square. So kinetic energy is equal to 1 over 2 kx naught ka square. So it's maximum kinetic energy. So at mean position, kinetic energy is maximum, but potential energy is 0. So you should know about these. And total energy formula is 1 over 2 kx naught square. So total energy is 1 over 2 kx naught square. Kinetic energy is maximum. I have told you 1 over 2 kx naught square. And potential energy is also 0. So at mean position, kinetic energy is equal to total energy. You can also say this. But at extreme position, x is equal to x naught. So potential energy is maximum as S is equal to x naught. Here potential energy formula is 1 over 2 kx square, but here x is equal to x naught. So 1 over 2 k x naught squared. So potential energy will be maximum at extreme position. But when you put x is equal to x naught in kinetic energy formula, then 1 over 2 k x naught square minus x square. So here you will put x is equal to x naught, so whole expression will be 0. 1 over 2 kx naught square minus x naught square, तो positive negative cancel and whole will be 0. So kinetic energy at extreme position is 0, but potential energy is maximum, and same will be for extreme negative extreme position, but here will be minus x naught. So you should know about these 3 conditions. They will be asked from you that what mean position potential energy is equal to 0 or not, kinetic energy is maximum, kinetic energy is equal to total energy at mean position. These are some questions that could be asked. Now you should know about, these are very important questions, and you should know about all these things, that at time t is equal to 0, t by 12, t by 8. I will suggest you to learn this rather than कि आप कहें कि मैं उस वक्त ही सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं फिज़िक्स में सॉल्व करने वाले. सो आई विल सजेस्ट कि ये वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको वैसे तो समझें, प्रैक्टिस भी करें घर के लिए, लेकिन आप रट्टा भी लगा लें ताकि उस वक्त आपको सॉल्व ना करने पड़े. So at time t is equal to 0, t by 12, and t by 8, t by 6 and t by 4. अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है. यू शुड नो अबाउट x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, x इज इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी. अब आपको सबसे पहले t इज इक्वल टू टी बाई 12, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाफ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2 किस टाइम पर होता है. यू शुड नो अबाउट t इज इक्वल टू टी बाई 12 कैसे होता है. आप पुट करें x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा, t इज इक्वल टू टी बाई 12, सो पुट t बाई 12. ओमेगा एज यू नो
2 बाई होता है, तो 2 बाई मल्टीप्लाई बाई टी बाई 12, दिस टी विल कैंसिल दिस एंड पाई बाई 6 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन पाई बाई 6। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पाई बाई 6 थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पाई इज इक्वल टू 180, सो 6 3 टाइम 18 तो 30, तो साइन 30 आप लोगों को साइंस की वैल्यू और कॉस की वैल्यू 30 45 60 एंड 90 एंड 1 की ये आनी चाहिए। तो एक्स इज साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2, तो एक्स तो यू कैन टेल के टी इज इक्वल टू टी बाई 12 पर आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2 होता है, मीन्स के हाफ होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको आना चाहिए, क्योंकि और भी वैल्यूज़ आ सकती है, मतलब कि ये नहीं पूछा जा सकता कि हाफ, लेकिन मैक्सिमम यही क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको रट ले भी, समझे भी और याद भी कर लें, क्योंकि इस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सॉल्व भी करेंगे। आपके पास केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन बहुत से होते हैं सॉल्व करने वाले, लाइक वाइज फिज़िक्स के भी होते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप याद भी कर लें तो आपके लिए बेहतर होता है। इसी तरह बाकी भी आपने इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस आपको मैंने अभी ये बताया कि एक्स डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2 हाफ टी बाई 12 पे होता है। अब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का भी समझाती हूँ, बाकी यू विल सी, तो आप घर खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी टाइम पीरियड किसी में मुश्किल हो तो यू कैन आस्क मी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया कि 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2 और के इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2, 1/2 के एक्स नॉट ओवर 4। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हाफ 1/4 पोटेंशियल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, 0.25 यानी 25%। कैसे देखें, अगर आपके पास 1/2 मैंने हाफ डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2 पुट किया है ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, क्योंकि हम उसी का कर रहे हैं हाफ डिस्प्लेसमेंट का, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2, सो 1/4 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। देखिए 1/4 ये 1/4 आ गया 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास के एक्स नॉट का स्क्वायर टोटल एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी आपको इसकी जगह लिख सकते हैं। बट हम लोगों ने टोटल एनर्जी की इन टर्म्स में करना है, क्योंकि हमसे पूछते हैं कि टोटल एनर्जी की टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की रेशियो बताएं। तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर एंड 1/4 आ गया, तो 1/4 इंटू टोटल एनर्जी 1/4 0.25 होता है, दिस इज 25% टोटल एनर्जी। एंड लाइकवाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2, एक्स नॉट ओवर 2 का स्क्वायर 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 4। अब आपने करना है 1/2 के, अब एक्स नॉट स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो यू विल टेक इट कॉमन 1 माइनस 1/4। देखिए अब ये हमारे पास एक लेंथी क्वेश्चन हो गया, तो इसीलिए हमें सर कहते थे कि आप लोग याद कर लें, तो इसीलिए अब ये 25% तो हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो सिंपली यू कैन माइनस 100 माइनस 25 इट्स 75% एंड इट्स 75% आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर आप यहाँ से भी सॉल्व किया जा सकता है बट इट विल बी लेंथी, सो 100 में से माइनस 25 कर लें, यू विल सिंपली गेट 75। पोटेंशियल एनर्जी तो आपके पास आ गई है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 75% है, तो 75% आपको पता होना चाहिए कि 75% 3/4 होता है, 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। सो यू विल गेट दिस एंड रेशियो आप सिंपली आप इनको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों को डिवाइड करके देखिए 1/4 25% एंड 3/4, तो 4/3 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1/3 सिंपली। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 1/3 है, टी टाइम्स टी इज इक्वल टू टी बाई 12, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 degree, I told you how 30 degree comes 5/6 is equal to 30 degree. So these are some questions कि आपको ये पता होना चाहिए टाइम t/8 पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2 एज साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, तो x नॉट ओवर √2, तो ये आपको बताना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 50-50% होते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू t/8, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड लास्टली आपको ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ्स आते हैं और बताना होता है कि ये किसका डिफ ग्राफ है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमारे पास साइन वेव कर्व है, ये हमारे पास साइन कर्व होती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू साइन वेव, बट वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट
या फिर आप लोगों के पास अगर ये ग्राफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान भी आएगा देन फिर भी आपके पास एलिप्सिकल यानी एलिप्सॉइडिकल ये आपके पास ग्राफ होंगे। नाम भी आपको आने चाहिए। साइन वेव कर्व थी एंड दिस इज़ एलिप्सिकल। अब एक्सेलरेशन और ये टाइम इनका हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर हो सकता है, तो एक्सेलरेशन इज डिस्प्लेसमेंट, तो इन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का भी बिल्कुल यही ग्राफ होगा। इसी तरह हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास पैराबोला होगा उसका ग्राफ, एंड सिंपली काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास पैराबोला होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास इस तरह होगा और पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास इस तरह का ग्राफ होगा। एंड टोटल एनर्जी का हमारे पास ग्राफ इस तरह का होगा या इस तरह का, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर कंफ्यूज करने के लिए हमें ये भी देते हैं और ये भी देते हैं। सो आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को ही कंसिडर करना है कि टोटल एनर्जी इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि टोटल एनर्जी हमारे पास हमेशा कंजर्व रहती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। एवरी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सेम, तो आप लोगों ने टोटल एनर्जी भी सेम रहती है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन इज़ हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन इज़ हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब हमारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट वन माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट का स्क्वेयर होता है, तो हाफ हमने वैल्यू निकालनी है, तो v हमारे पास ये तो मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम ओवर हाफ आ जाएगा। तो कैसा आता है